پہلے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی عوام کو، وہاں کے تمام ووٹرز کو، رائے دہندگان کو اپنی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پولنگ کے دن نکل کر اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، باوجود اس کے کہ ابھی بھی پورے ملک میں اور ہر جگہ پر کورونا وائرس چل رہا ہے، اور اگر پولنگ پرسنٹیج میں اور اضافہ ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا، مگر جنہوں نے نکلا اپنے ووٹ کا استعمال کیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور کیونکہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کرنے کا اور جو عوام کو ایک موقع ملتا ہے 5 سال میں ایک مرتبہ اپنے ووٹ کو ڈالنے کا، انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ دوسری جانب میں ساتھ ہی ساتھ ہمارے پارٹی کے تمام ممبرز کا، اراکین کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی محنت اور جستجو انہوں نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو 44 بلدیہ کے کارپوریٹرز یا ڈویژنز پر مجلس کے امیدواروں کو کامیابی ملی، میں وہاں کے تمام ووٹرز کو، رائے دہندگان کو، وہاں کے بزرگوں کو، عزت دار ماں اور بہنوں کو، غیور نوجوانوں کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ MIM کی جو کامیابی ہوئی ہے، 5 سال پہلے بھی ہمارے پاس 44 کارپوریٹرز تھے، اور جب ہم 60 میونسپل وارڈز پر انتخابات میں حصہ لیا تھا، اب کے بار ہم نے 51 میونسپل ڈویژنز پر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا، اور اس میں سے ہم نے 44 میونسپل سیٹس پر کامیابی حاصل کی۔ میں ہمارے تمام پارٹیز کے MLAs کا، پارٹی کے برانچ پریزیڈنٹس کا، بوتھ پریزیڈنٹس کا، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ہم تمام نے مل کر ٹیم ورک کی، اور نہ صرف الیکشن کیمپین کے دوران بلکہ MIM پارٹی سال کے 12 مہینے عوام کے درمیان میں رہتی ہے، اور ان کے درمیان میں رہ کر ان کے اچھے میں، ان کے برے میں، ان کی تکلیف میں، ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی لیے کہ ہمارا یہ کانسٹنٹ عوام کے درمیان میں رہنا، ان سے ملاقات کرنا، عوام کو دستیاب رہنا، یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیسیبل رہنا، وہ بھی ہماری کامیابی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جب 3 مہینے لاک ڈاؤن تھا، اس درمیان میں MIM پارٹی کی طرف سے لاک ڈاؤن میں غریب عوام کی خدمت کرنا، ان میں تمام ریشن کٹس کو ان میں جا کر ان کو پہنچانا گھر تک، پیشنٹس جو بیمار پڑ رہے تھے ان کے لیے اسپتال میں انتظام کرنا، اور پھر جو حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی زیادہ بارش آئی، اس 2-3 دن کے اندر جو MIM کے تمام ذمہ داران نے محنت کی، اور بعد میں ہم نے ان کو جو ریلیف پہنچایا، یقیناً وہ بھی اس میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ بہرحال میں تمام اپنے پارٹی کے ذمہ داروں کا، اور یہ ہماری کامیابی پوری میں ہمارے پارٹی کے ممبرز کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ان تمام وارڈز کے ووٹرز کو کریڈٹ جاتا ہے۔ MIM پارٹی نے 51 میونسپل سیٹس پر کنٹیسٹ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں ہم نے 44 ڈویژنز میں سے 34 پر کنٹیسٹ کیا، اور 33 میونسپل وارڈز پر ہم کو کامیابی ملی۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد پارلیمنٹری سیگمنٹ میں 44 میونسپل ڈویژنز ہیں، جس میں سے MIM نے 34 پر کنٹیسٹ کیا، اور 33 پر ہم نے کامیابی حاصل کی۔ یہ 5 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ دوسرا، سکندرآباد میں ہم نے سکندرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں 12 میونسپل وارڈز میں کنٹیسٹ کیا، اور 9 میونسپل ڈویژنز پر الحمدللہ ہم کو کامیابی ملی۔ ویسے ہی ہم نے
3 म्यूनसिपल वार्ड्स मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। 2 म्यूनसिपल डिवीजन्स हमने चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ा और दोनों पर हमको कामयाबी मिली। तो मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया और हमारी पार्टी को इन गरीब आवाम की दुआओं को कबूल किया और हमको कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे जो 44 सीट थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिटेन किया और जो 7 म्यूनसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी नहीं मिली उसके ताल्लुक से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। मगर मैंने हमारे तमाम जीतने वाले जितने भी नए नौ मुंतखब शुदा या न्यू कॉरपोरेटर्स हैं उन सब से मैंने बातचीत की है और उनसे मैंने कहा कि भाई साहब कल से आप लोग तमाम अपने काम का आगाज़ शुरू कर दीजिए। हमने जो आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने का कल ही से वक्त शुरू होता है। और साथ ही साथ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आप तमाम को कि पुराना पुल डिवीज़न से राजमोहन चौथी मरतबा MIM पार्टी के म्यूनसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर जीते हैं। कारवान से हमने स्वामी यादव को टिकट दिया था राजेंद्र यादव साहब की जगह पर, उनको कामयाबी मिली। तो ये हमारी परफॉर्मेंस था जिसको मैं समझता हूँ कि मैं इससे मुतमईन हूँ। और हमारा जो अगर आप बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट है 51 म्यूनसिपल वार्ड्स में, ये हमारा मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीक़े से बीजेपी से मुकाबला करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के क़दम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम इसको रोकेगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बीजेपी की जो कामयाबी है वक्तिया कामयाबी है, ये उस वक्त तक इतनी कामयाबियां इनको नहीं मिलेंगी। और मुझे अवाम का फैसला है, हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया बीजेपी की हद तक। मगर MIM पार्टी को तो मैं समझता हूं कि हमने तमाम बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हैदराबाद की आवाम ने हमको दिया है। शुक्रिया। सर, आप जब लोकसभा चुनाव में 4 सीटें बीजेपी जीत के आई थी उस समय भी आपने कहा था कि ये वक्तिया कामयाबी है, फिर उसके बाद ये कामयाबी नहीं। देखिए आप ये बात कह रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि जरा वो आंख पे। तो निजामाबाद में म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का MP है वहां पे, कितनी सीटें MIM जीती? बीजेपी का MP है निजामाबाद में, MIM ने कितनी सीट जीती? 16 सीट जीती हम। तो आपको बता रहा हूं कि होगा ये इलेक्शन का वर्डिक्ट है, म्यूनसिपल इलेक्शन है, थोड़ा ऊंच नीच होती है। और मुझे यकीन है कि मैं तो प्रिवी नहीं हूं, ना मुझे अख्तियार है TRS पार्टी पर बोलने का, मगर मुझे यकीन है कि ये लोग देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए, उसको देखेंगे। मगर उनके पार्टी का मसला है। सर, अभी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये बात आती है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट का प्रसाद साहब जरा थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। लेकिन बहुत अहम बात है। हाँ बिल्कुल है, नहीं हर चीज अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है और हम फैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार हजरात से मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मशवरा करूंगा, उनकी राय हासिल करूंगा, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। यकीनन हमको फैसला करना है, हम करेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हुआ है और JP नड्डा ने भी ये कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, KCR की करप्ट सरकार को हम निकालेंगे। तो आप उस पर कैसे देखते हैं?
अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहां पर योगी आए थे क्या हुआ, टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए और जो जुल्म वहां पर दलितों पर किया जा रहा है उसको खत्म करिए। जो खवानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं वो रोकिए। और मुझे यकीन है कि केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीजें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर मेयर की सीट चाहिए तो? मैं अभी आपसे कहा हूं मैडम कि जरा थोड़ा सांस लेने दीजिए, थोड़ा हमको अपनी इतनी बड़ी कामयाबी हमको मिली है, थोड़ा हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से हमको अपनी उनकी खुशी का हिस्सा बनने दीजिए। और कल सुबह में हम तमाम पार्टी के हमारे जिम्मेदारों से, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उन तमाम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे और जो भी फैसला होगा आप तक पहुंचाएंगे। सर, आपने अपने घर हैदराबाद से अपील की थी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी को यहाँ पर कंप्लीटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आप ही के घर में बीजेपी नंबर कहाँ देखिए, आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना, आप देखे सुनिए, आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? नहीं, आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर